Assalamu alaikum everyone. Welcome back to You Talks by Zab FM, powered by Zabist. I'm your host Fatma, and today we have two guests with us. Could you please introduce yourselves? I'm Umme Habiba. And I'm Umme Habiba Lakho. A small disclaimer before we begin our discussion that we are still students and we are still learning about the Constitution of Pakistan. So our opinions and our discussions are not meant to hurt anyone's feelings or anyone's beliefs. We are simply discussing what we have learned about, and if our beliefs goes against what you believe, we apologize for that. We are not here to offend anyone, so kindly take our word with a grain of salt. So today's discussion focuses on a very important constitutional and social issue in Pakistan: gender equality. While the Constitution of Pakistan guarantees equal rights to all citizens, regardless of their gender, many women still face challenges in exercising these rights due to cultural expectations and social norms. This topic explores the gap between what the law promises and what many people experience in everyday life. We'll be discussing constitutional provisions, the impact of social conditioning, notable examples, and possible ways to bridge the gap between legal equality and social reality. So let's start with Habiba. Can you tell me what is your main argument for today's discussion? The main argument today is that there is often a gap between constitutional equality and social reality in Pakistan. पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑन पेपर तो लीगल इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है. इट सेज दैट मेन एंड वुमेन आर इक्वल एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. बट जो फैमिली एक्सपेक्टेशंस, कल्चर वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस हैं पाकिस्तान में, दे ऑफन मेक इट हार्डर फॉर वुमेन टू एक्सरसाइज दोज राइट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, औरतों के पास ये राइट है कि वो बाहर जाके हायर एजुकेशन परस्यू कर सकती हैं, बट ऑफ्टन टाइम्स सोसाइटी उन्हें प्रेशराइज करती है और दे वोंट फील एबल टू एक्सरसाइज दोज राइट्स एंड परस्यू हायर एजुकेशन. सो हमारी जो मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि लॉज डोंट एग्जिस्ट. अ मेन प्रॉब्लम इज़ दैट देयर शुड बी बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज लॉज. So, Habiba, which constitutional article is most important for gender equality in Pakistan? I think the most important article is 25, जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है जेंडर इक्वालिटी को. और इसमें बाकायदा बताया गया कि ऑल सिटीजन्स इन पाकिस्तान आर इक्वल, देयर इज़ नो एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए आपकी जेंडर के बयान पे. और चाहे वो मैन है या वुमेन है, दोनों ही इक्वल राइट्स रखते हैं पाकिस्तान में. दोनों इक्वली अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, जॉब्स हासिल ले सकते हैं, जो भी चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं. ऑल्सो आर्टिकल 25 जो है वो फाउंडेशन है फॉर द जेंडर इक्वालिटी, जिसमें बहुत ज़्यादा बताया गया है कि मैन एंड वुमेन दोनों अपनी जॉब्स पे काम कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन पे काम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें कि अगर एक मैन और वुमेन को गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उन दोनों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन के पास है या सिर्फ वुमेन के पास है, वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं. अब आगे उनका सिलेक्शन हो ना, वो उनकी अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना डिजर्व करते हैं. बट ग्राउंड रियलिटी में अगर हम देखें तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो वो सारे राइट्स मिल रहे हैं, बट जो हमारी सोसाइटी है वो हमें वो राइट्स नहीं दे रही कि हमारी सोसाइटी बॉयज़ को ज़्यादा सपोर्ट करे कि वो जाके आगे एजुकेशन हासिल करें, बट वुमेंस को सपोर्ट नहीं करे. तो द थिंग इज़ कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तमाम राइट्स मिल रहे हैं, बट सोसाइटी हमें नहीं दे रही. So, Habiba, why is Article 34 important in addition to Article 25? As she mentioned, that Article 25 lays the ground for gender equality by stating that men and women are equal before the law. Article 34 takes the discussion a step further, and it includes women. It tries to include women in all spheres of national life. Article 34 states that there should be steps taken for active participation of women in all spheres of national life. So Article 34 doesn't just focus on legal equality, it also focuses on participation of women in politics, education, employment, and sectors like that. So for example, we have seen recently there has been an increased number of women entering professions such as medicine, law, journalism, and civil services. These fields were
in the past they were recognized as male dominated fields, and now women are able to enter those fields and apply for jobs in those fields because of better implementation of Article 34. The constitution doesn't just stop at the formal recognition that yeah, men and women are equal. It goes a step further and says that active participation is as much needed as formal recognition of gender equality. So, how do traditional gender roles affect women's opportunities? ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स डिसाइड करते हैं कि एक वुमेन एंड मैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे आज के दौर में। वो बहुत दिखाते हैं कि एक मैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वुमेन की क्या है, एक मैन को क्या करना है, वुमेन को क्या करना है। जैसे वो पहले से बता देते हैं कि जो मैन है वो इस तरीके से फील करवाते हैं कि जो मैन है वो ज़्यादा, उसके पास ज़्यादा अथॉरिटीज़ हैं, वो ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर सकता है, वो कहीं भी जाके जॉब कर सकता है, बट वो और वो ज़्यादा डिसीजंस ले सकता है अपने घर के अंदर, वो अथॉरिटी उसके पास है। बट अगर हम वुमेन के बारे में बात करें तो उनकी जो हमारे पास सोसाइटी है वो एक्सपेक्टेशंस उनके लिए डिफरेंट है वुमेन के लिए, कि नहीं वो घर पे बैठेगी, वो उसको अब ज़्यादा नहीं पढ़ना, अगर पढ़ना भी तो बहुत कम पढ़ाते हैं, या अगर उसने पढ़ भी लिया तो आगे उसको जॉब्स नहीं करवानी, और या आपको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने घर पे बैठना है या आपने बच्चों को संभालना है, घर की तमाम जिम्मेदारियों को संभालना है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें, अगर एक बॉय है, अगर वो अपनी फैमिली में बोलेगा कि मुझे बाहर जाना है फॉर द फर्दर एजुकेशन, तो उनकी फैमिली कहीं ना कहीं उनको अलाउ कर देगी कि ओके, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम, हाँ, उनको सपोर्ट करेगा कि हाँ आप बाहर जाओ, कोई मसला नहीं, आप जाके जितना आपने पढ़ना है, आप जहाँ जाना चाहते हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। उसी जगह पे अगर हम वुमेन को देखें, अगर वो बोलेगी तो उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, बहुत रेयरली सपोर्ट किया जाता है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स निकलती है, अकेली रहोगी, क्या करोगी। बिल्कुल। और अगर इसी तरीके से हमारे पास पाकिस्तान में हमारे पास कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको अगर सपोर्ट मिली है तो उन्होंने बहुत अच्छे से अपने फील्ड्स को लिया है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ऐसी कई लड़कियां हम देख सकते हैं जिनको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो बहुत आगे जा सकती हैं, बट इन्हीं सोसाइटी बैरियर्स की वजह से वो रुक गई हैं इस टाइम। Hariba, can you tell me what does the term internalized inequality mean? Internalized inequality refers to a process where unequal expectations over the time इतनी common हो जाती हैं कि people just start to accept it as normal and they stop questioning it. For example, in Pakistan बचपन से ही है ना फैमिलीज़ जो हैं अपने बच्चों को डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस के साथ रेज़ करती हैं। फैमिलीज़ जो हैं लड़कों को इस एक्सपेक्टेशन के साथ रेज़ करती हैं कि वो बड़े होकर है ना कैरियर ओरिएंटेड बनेंगे और वो है ना अपनी है ना रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, वो प्रोवाइडर्स बनेंगे। सेम टाइम पे वो अपनी जो बेटियों को इस एक्सपेक्टेशन के साथ रेज़ करते हैं कि वो जो हैं है ना रिस्पॉन्सिबल होंगी, मॉडेस्ट होंगी और सेल्फ सेक्रिफिशियल होंगी, है ना, और है ना अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालेंगी, है ना। और है ना ये ओवर द टाइम ये जो एक्सपेक्टेशन है वो इतनी डीपली रूटेड हो जाती हैं कि है ना इनको चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। आई फील लाइक इनको चेंज करने के लिए सोसाइटी हमें स्पेस भी नहीं देती है। लाइक सोसाइटी डजंट गिव अस अ चांस कि हम अगर चेंज करना भी चाहें बिलीव्स को अपने आप में ही, तो सोसाइटी की तरफ से और मतलब बैकलैश मिलती है कि नहीं ये बिलीव्स ही सही है, इनइक्वालिटी जैसी है, बिकॉज दे डोंट सी इट एज इनइक्वालिटी। उनके माइंड में यही है सही है। इतने टाइम से इतनी जनरेशंस के साथ वो ट्रेडिशनल वैल्यूज बन के आ रही हैं कि दे जस्ट लाइक है ना उनको नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मलाइज क्योंकि हम देखते हैं कि है ना जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को रेस कर रहे हैं डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस के साथ। वो इंटेंशनली तो ये नहीं कर रहे ना कि हम अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ठीक है। उनकी तो इंटेंशन यही है कि वो अपने बच्चों को जिस तरीके से उनको लग रहा है कि सही रेस कर रहे हैं वो तो उसी तरीके से उन्हें अपने बच्चों को पाल रहे हैं ना। बट है ना ग्राउंड रियलिटी तो यही है ना कि वो जो उनकी रिस्ट्रिक्शंस वो अपने बच्चों पे लगा रहे हैं उसका जो आउटकम निकल के आ रहा है वो वुमेन्स की अपॉर्चुनिटीज़ है ना को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, लिमिट कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंटरनलाइज इनइक्वालिटी जो है सिर्फ औरतों को इफ़ेक्ट नहीं करती, वो मर्दों को भी इफ़ेक्ट करती है। और है ना इवन दो इनइक्वालिटी जो है मोस्टली जो है स्टेटिस्टिकली वुमेन ही फेस करती है, बट है ना हमने ये देखा है कि औरतें जो है ना वो ओवर द टाइम वो खुद भी उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देती हैं। जैसे वी सीन के है ना वुमेन जो है वो खुद ही अपनी बेटियों को मना कर रही होती हैं कि हायर एजुकेशन परस्यू मत करो, है ना करियर फोकस होने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी कर लो, है ना। और वो ये एक्सपेक्टेशंस रखती हैं अपने है ना बेटियों पे, जबकि उनको सपोर्ट करना चाहिए। बट इंटरनलाइज इनइक्वालिटी जो है वो बहुत टाइम से चलती आ रही है एज वी मेंशन्ड।
और है ना उनको उसको चेंज करने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा. So, do you think that changing social attitudes is just as important as changing laws? Exactly, changing social attitudes are as important as social laws because आप देखें तो हमारे पास जो हमें लॉ है वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो आपके सोशल बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, वो आपके सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते. तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आपके सोशल बिहेवियर आपकी सोसाइटी को भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी कई एग्जांपल्स हैं कि हम देख सकते हैं कि इवन तो अगर आपके पास लॉज हैं कि आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, आप जॉब्स कर सकते हैं, आपके राइट्स हैं, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से है, बट अगर आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट ना करे तो आप कहाँ क्या करेंगे. वहाँ पे वो टाइम आ जाता है कि लॉ यहाँ कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जब आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट नहीं करे, आपकी फैमिली ही आपको वो राइट ना देना चाहे, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते. और अगर हम वर्क प्लेस पर भी देखें तो हमारे पास पाकिस्तान में कई ऐसे केसेस हैं कि हम बात कर सकते हैं कि इवन वुमेन्स आर स्टिल नॉट सेफ इन देयर वर्क प्लेस. अभी एक रिसेंट केस जैसे बलूचिस्तान में हुआ, तो वहाँ पे भी एक डॉक्टर थी, डॉक्टर में हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के ऊपर जो एसिड फेंका गया, तो इससे साफ वाज़ेह है कि अभी भी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं. वुमेन आर स्टिल नॉट सेफ. और अगर उनके वर्किंग प्लेस पर भी ऐसे ही नेगेटिव एटीट्यूड्स होंगे तो दे आर नॉट सेफ. सो आई थिंक हमें ऐसे कैंपेन्स और ऐसी अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि सिर्फ लॉ ही हमें चेंज नहीं कर सकते, सोशल बिहेवियर भी हमें चेंज करना चाहिए. क्योंकि हम अगर ये भी देखें कि पाकिस्तानी लॉ जो है वो इस्लामिक लाइक रूल्स के ऊपर बेस्ड है, और इस्लाम में इटसेल्फ वुमेन मतलब औरतों को बहुत हुकूक दिए गए हैं, है ना. इस्लाम वो पहला रिलीजन है जिसने औरतों को सही मायनों में हुकूक दिए, राइट्स दिए हैं. तो इवन बेस्ड ऑन दैट मतलब इस्लाम ने हमें इतने हुकूक दिए हैं, हमें पाकिस्तानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इतने हुकूक दे रहा है, बट स्टिल पाकिस्तानी वुमेन आर जनरली क्वाइट अप्रेस्ड. इट्स मेनली बिकॉज क्योंकि सोसाइटी ने जो थॉट्स बनाई हुई हैं कि औरतों को कैसा होना चाहिए, बहुत ही नेगेटिव और ना अनइक्वल थॉट्स हैं, तो उन्हीं को मेंटेन करते हुए औरतें मतलब अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकती हैं. बिल्कुल. तो हबीबा, कैन यू टेल मी व्हाट रिफॉर्म्स वुड यू प्रायोरिटाइज इफ यू कुड इम्प्लीमेंट ओनली वन? If I had to choose, I would prioritize education, क्योंकि education का जो impact होता है वो long term होता है, because it does not just provide knowledge, it shapes our attitudes and values. जैसे अभी मैंने internalized inequality mention की थी, और है ना stereotypes जो हमारी society में over the time बन जाते हैं, वो जो हैं, जैसे मैंने अभी internalized inequality और है ना stereotypes mention किए थे, वो जो हैं वो हमारी society में है ना at a young age ही आ जाते हैं बच्चों में, है ना. तो उसको टैकल करने के लिए हमें मतलब है ना बचपन से ही है ना बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी और है ना रिस्पेक्ट फॉर अदर्स और पार्टिसिपेशन के बारे में है ना पढ़ाना चाहिए. और स्कूल्स जो हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हम स्कूल्स में ही है ना स्टार्टिंग में ये है ना अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बेस्ड है ना हम लोग ये बात रख दें कि है ना वुमेन एंड मेन आर इक्वल, और ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको हम क्वेश्चन करें, और है ना उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ दें कि आप है ना लीडरशिप रोल्स और है ना स्पोर्ट्स वगैरह में आप अपनी कैपेबिलिटीज़ और इंटरेस्ट के हिसाब से जा सकते हो, रादर देन ऑन योर बेस्ड ऑन योर जेंडर. तो है ना वो है ना जो स्टीरियोटाइप्स बनते आ रहे हैं वो आगे है ना एक सोशल चेंज की तरफ हम लोग मूव करेंगे. और है ना ठीक है, आई थिंक एजुकेशन में भी ये देखा जाता है, नॉट जस्ट फॉर वुमेन, इवन फॉर बॉयज़ कि अगर कोई जैसे लड़कों को स्पोर्ट्स का शौक़ नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली ज़रूरी थोड़ा ना कि हर मर्द को स्पोर्ट्स का शौक़ हो, बट स्कूल्स में ये भी देखा जाता है कि किसी बच्चे को अगर स्पोर्ट्स का शौक़ नहीं है तो टीचर्स उससे बोल रहे होते हैं कि तुम लड़के हो, मर्द बनो, गो एंड प्ले, लाइक दिस इज तुम्हारी उम्र है, तुम्हें खेलना चाहिए. और लड़कियों को बल्कि और रोक रहे होते हैं कि तुम क्या करोगी धूप में इतनी ना, क्या खेलोगी. तो मतलब ये क्वालिटी दोनों साइड्स पे जा रही है. तो आई थिंक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब लड़कों को भी लड़की को भी दोनों को सिखाएं कि मतलब क्योंकि जब जैसे टीचर जो है वो लड़कों को बोल रही है तो लड़की भी तो सुन के यही देख रही है ना कि वो लड़कों के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, लड़के जो हैं वो ज़्यादा मतलब वो मर्द बन रहे हैं इसलिए वो जाके खेल रहे हैं, और हम लड़कियों को नहीं करना चाहिए. भले टीचर मतलब लड़की को कुछ ना बोलें, बट लड़की तो ये ऑब्जर्व करके सीख रही है. तो यू आर राइट, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड लाइक, बिकॉज बेटर एजुकेशन कैन ऑल्सो इम्प्रूव social awareness, and it can also reduce misconceptions about social realities. Laws अच्छे होना और उनकी enforcement अच्छा होना is important, but जो education है वो है ना
वो डीप जो कॉजेज है ना सोशल कंडीशनिंग के, उनको क्वेश्चन करती है. तो इट्स एजुकेशन इज आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट देन just having laws and their implementation. Okay, so Habiba, can you tell me what constitutional protections exist for women apart from Article 25? पार्ट ऑफ 25 देयर आर 2 आर्टिकल्स जो कि जेंडर इक्वालिटी पे स्टिल बात करें वुमेन के लिए. देयर इज 34 आर्टिकल जो कि हमें नेशनल वुमेन की नेशनल लाइफ पे बात कर रहे हैं कि उसको एजुकेशन, उनकी जॉब्स, उनकी पार्टिसिपेशन, कि वो बिजनेस कर सकती हैं, पॉलिटिक्स में जाती है, इन सब बारे में बात कर रहे हैं. एंड ऑल्सो 37 आर्टिकल जो है वो ये बात कर रहे हैं कि आपको वर्क प्लेस पे कितनी प्रोटेक्शन, सेफ्टी, फेयर कंडीशंस, ये सब कुछ कितना मिल रहा है. ठीक है, हम वहाँ के आपके प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं. मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि अगर एक वुमेन है और वो किसी जगह पे काम कर रही है, तो ये एग्जांपल से हमें क्लियर हो रहा है कि आपको कितने ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं. वुमेन को उनके मैटरनिटी लीव्स मिलते हैं ताकि वो जब मैटरनिटी लीव पे हो तो अपने बच्चे का ख्याल रख सके, अपनी हेल्थ का ख्याल रख सके और पूरी फैमिली को अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से टेक ओवर कर सके. और यहाँ पे अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेन को ही यहाँ पे राइट्स मिल रहे हैं, इवन मैन को भी मिल रहे हैं. यहाँ पे पैटर्निटी लीव्स की भी बात हो रही है. इवन 30 लीव्स जो है वो पैटर्निटी लीव्स भी हैं कि एक बाप जो है वो भी अपने घर पे रहे, अपनी वाइफ का ख्याल करे, अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले. तो यहाँ पे दोनों के ही इक्वल राइट्स हमें दिखाई दे रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में दोनों ही की इक्वल राइट्स पर बात किया गया है. कोई एक हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वुमेन्स को ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं या सिर्फ मैन को ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं. बोथ आर इक्वल. So Habiba, why would you argue that gender inequality is not only a legal issue? Because having rights and being able to use those rights are not the same thing. And also because gender equality is a two-dimensional issue, ठीक है, और it has two dimensions, legal and social one. So if you're only focusing on the legal one, then we're completely disregarding the social dimension of it. So मोस्ट ऑफ द टाइम जो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स दिए गए हैं कि हम लोग है ना, वी आर इक्वल, वी हैव इक्वल entitlement to legal protection and we are equally enabled to participate in society, right? But social pressure और family expectations जो हैं हमें बहुत टाइम जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि हम ये नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल, औरतों के पास ये राइट है कि वो अपने है ना मर्जी से काम कर सकते हैं, है ना, काम कर सकती हैं, किसी भी जगह वो अप्लाई कर सकती हैं और वो वहाँ पे जॉब कर सकती हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं, जो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर तुम बाहर काम करोगी तो हमारे घर पे क्या बात आएगी, हमारी रेपुटेशन का क्या होगा, ठीक है, हमारे घर की औरतें ऐसे नहीं करती हैं, ऐसी बातें आ जाती हैं. तो ये बात सिर्फ अपनी फैमिली से भी नहीं आती, शादी में भी आता है कि मतलब लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारा शौहर तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, तुम इसलिए जॉब कर रही हो. मतलब माइंडसेट वही है कि औरत सिर्फ इसलिए काम कर रही है बिकॉज शी नीड्स मनी एंड नॉट बिकॉज मे बी शी लव्स हर प्रोफेशन. सो इवन दो राइट्स टू वर्क एग्जिस्ट, सोशल नॉर्म्स वगैरह जो हैं वो औरतों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं. So Habiba, how can families contribute to gender inequality? I think families are the very responsible for the gender equality because जो बच्चों का सबसे पहला स्कूल होता है ना वो उनके पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो बच्चों का टाइम होता है अपने पेरेंट्स के साथ गुजर रहा होता है और वो सबसे पहले जब उनका माइंड डेवलप हो रहा होता है तब वो अपने पेरेंट्स से ही सब कुछ सीख रहे होते हैं. अगर आपके पेरेंट्स ही स्टार्ट से आपके माइंड में डेवलप करें कि लाइक आप में डिफ्रेंशिएट करें कि नहीं वो तो बेटा है और आप बेटी हो तो आप दोनों में डिफरेंस है, तो यही एक बच्चे के अंदर माइंड में यही डेवलप होगा कि हाँ, एक बॉय के माइंड में डेवलप होगा कि देखो मेरे पास ज़्यादा अथॉरिटीज़ हैं, मैं ज़्यादा रूल्स बनाऊंगा, मेरे पास ज़्यादा फ्रीडम है. क्योंकि अगर हम देखें तो ये इट्स वेरी क्लियर कि जब आप बेटे को देखते हो तो बेटे को ज़्यादा रात तक बाहर रहने की इजाज़त देते हैं, कहते हैं कि हाँ ठीक है बेटा है, रात तक खेल रहा है, देर से आ रहा है, इट्स फाइन ओके. बट अगर वो बेटी की बात करें तो कहते नहीं मगरिब से पहले वापस आ जाना, नहीं तुम बाहर नहीं जाओ, अगर जा रही हो तो इतना ज़्यादा. एक एग्जांपल इसमें मैं दूं जो देखिए बहुत कि मतलब बड़ी बहन है, भाई छोटा होगा, 10 साल का भाई होगा, लेकिन बड़ी बहन को किसी काम से बाहर जाए तो साथ में 10 साल का भाई जाए कि घर का लड़का गया साथ में. डजंट रियली मेक सेंस क्योंकि वो लड़का क्या कर लेगा, है ना, गॉड फॉरबिड कुछ होता है वो बच्चा क्या कर लेगा. लेकिन वो वाली बात है कि नहीं लड़का साथ गया, लड़की अकेले नहीं गई है. इट्स अ वेरी नेगेटिव माइंडसेट कि मतलब अगर लड़की बाहर अकेले गई भी तो वो क्या कर लेगी. इट्स अ वेरी मतलब मिसोजिनिस्टिक सा माइंडसेट है कि ये क्यों
और हाँ, बिल्कुल ऐसे। और लाइक अगर वो प्ले भी करना चाह रहा है, कोई बॉय कुछ खेलना चाह रहा है, तो उसके लिए हाँ, तुम क्रिकेट खेलो, तुम फुटबॉल खेलो अगेन। बट अगर लड़की खेलेगी तो नहीं, तुम तो लड़की हो, तुम्हें क्या ही करना है, तुम बैठ जाओ। एजुकेशन में भी ऐसा ही होता है कि अब तुमने क्या करना पढ़ के, तुम्हारी तो वैसे ही शादी हो जाएगी, तुम तो वैसे भी तुमने घरदारी संभाली, तो तुम ना पढ़ो। ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। इवन इतना ज़्यादा हम सीरियस नहीं लेते, बट ये आपका माइंड डिस्टर्ब एक बच्चे का डेवलप हो रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें ही बच्चा अपने साथ लेके चल रहा होता है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो एक सर्टेन एज होती है, उसके बाद एक सोसाइटी से प्रेशर आता है कि यार ये एज के बाद ना इस लड़की की शादी हो जानी चाहिए, शादी अब तक क्यों नहीं हुई, क्यों ये घर पे बैठी हुई है, ऐसे ये इतना पढ़ क्यों रही है, ज़्यादा पढ़ जाएगी तो ये ख़राब हो जाएगी, इसकी तो शादी नहीं होगी इतना पढ़ लिया है तो। और ऑल्सो अगर एक बॉय की बात है तो वो बेशक अगर उसकी एज बहुत ज़्यादा भी हो जाएगी तो उसको कोई नहीं पूछेगा, उसको कोई सोसाइटी की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा जितना एक लड़की को होगा कि नहीं यार वो तो लड़का है, कर लेगा, अभी तो उसको पढ़ने दो, अभी तो उसको जॉब करने दो। तो यहाँ पे बहुत Settle ज़्यादा down तो होने दो। एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हम आई देखते हैं। फील लाइक इसके ऑपोजिट साइड पे भी अगर देखें, जैसे आपने बचपन में कहा था कि मतलब बचपन में लड़के को बाहर खेलने दो, लड़की के तुम्हारे तो किचन में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कुछ ऐसे लड़कों को भी शौक होता है कुकिंग का, या उनको अगर शौक होता है कि घर के काम, क्योंकि Exactly. द थिंग इज कि जो इनक्वालिटी लोगों के माइंड में पैदा होती है, वो कोई भी इंसान इनक्वालिटी लेके पैदा नहीं होता है, Exactly. है ना, वो सिखाई जाती है उसको। सिखाई जाती है। तो मतलब अगर लड़के को भी शौक है किचन में काम करने का, तो उसके अम्मा रोक देती कि नहीं बेटा तुम्हारा काम नहीं है, ये तो तुम्हारी बहन का काम है। अगर वो चाह रहा है कि अपने घर में कंट्रीब्यूट करे, जैसे खाने के बाद बर्तन उठा के रख रहा है, तो नहीं बेटा तुमने क्यों, तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारी बहन करेगी। Exactly. तो दिस इज लाइक अनफेयर फॉर द बॉय एज वेल, बिकॉज समटाइम्स कि मतलब आइडेंटिटी में भी उनका मसला हो सकता है कि लाइक दे वांट टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन देयर हाउस बाय डूइंग अ जॉब। ये साइकोलॉजी में भी हम इसको ला सकते हैं कि ही फील्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग बाय डूइंग समथिंग इन हिज फैमिली। बट जब वो राइट उससे ले लिया जा रहा है कि आप नहीं करो, आप छोड़ दो, आप बस बाहर का देखो, तो उसके ऊपर मतलब एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ सकती है। Exactly. और अगर बड़ेपन में आप देखें, जैसे शादी की लड़कियों के लिए कि जल्दी शादी करो, तो लड़की पे भी एक स्ट्रेस है कि ठीक है उम्र ज़्यादा हो गई है, बट वो होता है कि तुम्हें शादी के बाद ना पूरा खर्चा बीवी का, बच्चों का, अम्मा अब्बा का, बहन भाई सबका खर्चा तुमने उठाना है। तो वो फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज़्यादा होता है लड़कों पे। दैट्स ऑल्सो अ मेजर रीज़न वाई लड़के जो है शादी नहीं करते हैं, क्योंकि इवन इफ दे आर सेटल डाउन बाय लेट्स से एज अर्लियर एज 24-25 तक वो सेटल डाउन हो भी जाते हैं, उनको ये खौफ डरा देता है कि भाई अगर शादी हो गई ना, कल को बच्चा हो गया तो बीवी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इकोनॉमी की क्या हालत हो रही है उस हिसाब से दे मतलब वो लोग नहीं करते इसी डर से कि नहीं मैं नहीं कर सकता, आई कांट बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फाइनेंशियल बर्डन दोनों की तरफ पे ही मतलब लड़की की तरफ पे फाइनेंशियल बर्डन होता है, लड़की की तरफ पे इमोशनल बर्डन होता है। लाइक वो जैसे बचपन से इसको इतनी ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है, उसको डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन लेने की आदत होता है, तो जब बड़ा होगा तो जब उसकी अपनी शादी होगी या अपना आगे जाएगा तो वो भी ऐसे ही बिहेव करेगा कि नहीं मैं ही रूल्स बनाऊंगा, मेरी ही मानी जाएगी, सिर्फ मैं ही बड़ा हूँ। और उसको बुरा लगेगा अगर उसकी बीवी डिसीजंस लेगी तो उसको ये बहुत हिट करेगा। और दूसरों के भी प्रेशर होता है कि बीवी डिसीजंस ले रही है, तो फिर लड़के की अम्मा अब्बा और बहन भाई बोलते हैं कि तुम्हारी बीवी तुम्हें नचाती है, तुम मतलब दीज आई एम जस्ट कोटिंग व्हाट पीपल से। तो एक वो होता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें कंट्रोल कर रही है, तुम क्या मर्द, कैसे मर्द हो, तुम उसको कंट्रोल करने दे रहे हो। तो दीज नेगेटिव कमेंट्स कैन डेफिनेटली अफेक्ट अ पर्सनस मेंटल दैट्स अ रियलिटी। आई फील लाइक कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है ना वो इसी बात से अराइज करता है। जैसे अभी इसने मेंशन किया कि जब है ना मर्द जो है वो पूरी अपनी ज़िंदगी ये सुन के आए हैं कि है ना मुझे अथॉरिटी रखनी है अपनी है ना लाइफ में, और सारे डिसीजन मैं लूँगा, और है ना मतलब घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना जो मैनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मेरी हैं, ठीक है। तो अगर है ना जब उसकी बीवी कोई डिसीजन लेगी और अगर अपनी उसकी जो बीवी है वो अपने लिए स्टैंड लेगी ना, तो उसको है ना ऐसा गुस्सा फील होगा, उसको है ना ऐसा फील होगा कि नहीं ये गलत है, ठीक है। तो देयर इज अ मोर चांस कि ही विल टर्न वायलेंट टुवर्ड्स हिज वाइफ एंड इवन आउटसाइड ऑफ हिज वाइफ। अगर जैसे इफ अ मैन, क्योंकि दिस इज वेरी कॉमन, ये देख चुके हैं कि मतलब आउटसाइड ऑफ द फैमिली, मतलब घर के बाहर आप अगर कोई आदमी जो है किसी लड़की को अप्रोच करता है ना, वही वाला माइंडसेट है। इट्स नॉट एंटायरली हिज फॉल्ट इफ आई वुड बिलीव, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई थी कि he believes कि I have the right to do all this, है ना। and when you take away someone's rights they get frustrated। या हम लोग जो ज़्यादातर औरतें बहुत frustrated हैं, it's because हमारे rights नहीं मिल रहे, हमारे rights हमसे ले लिए जा रहे हैं, है ना। तो
put that, like taking away rights on a person who has never been taught how to emotionally deal with his, like अपने इमोशंस को कैसे डील करना है ना. आप लड़कों को हमेशा ये सिखाए कि रोना नहीं, तुम मर्द हो, तुम लड़के हो, लड़के रोते नहीं हैं, तो दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस. और आपने उससे वो एक राइट ले लिया, मतलब आप ही अप्रोच्ड अ गर्ल एंड शी रिजेक्टेड हिम कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना. तो मतलब it could be interested for anything. I'm not necessarily saying something bad. Maybe he's proposing कि मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे, निकाह करना चाहता हूँ in a very halal way, but she just doesn't want to, क्योंकि she has a right to say no. But अब वो वाली बात है कि उसका right ले लिया जा रहा है उससे, and he might feel कि you know this is wrong, frustration है, तो that can also turn into gender violence. एग्जैक्टली. सो ये है कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो इक्वली आप दोनों को सपोर्ट करें, चाहे वो आपका बेटा है या बेटी, आप दोनों को इक्वली पार्टिसिपेशन करने दें, दोनों को इक्वली इनकरेज करें, ताकि एक सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सके. और अगर एक बॉय या वुमेन जो भी है वो आगे जब वो बड़ी हो तो उनके ऊपर वो ये बिहेवियर्स ना हो. एटलीस्ट यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को चेंज करना. How can the Kandil Baloch case be discussed in regards to this topic? The Kandil Baloch case can be significant while discussing gender equality, because when it happened back in 2016, it sparked a national discussion about gender norms and social expectations, and how women who go against the culture norms and the traditional values can face harsh criticism from society. Kandil Baloch was a social media personality who openly challenged traditional expectations and gender norms. She was murdered in 2016 by her brother. वही बात आ जाती है कि he might have thought कि ना जो वो उसकी authority को question उसकी किया जा authority रहा को था. क्वेश्चन किया जा रहा है. he might have thought कि है ना, मतलब उसकी गैरत पे बात आ गई है. ठीक है, तो है ना, she was killed in a honor based violence. और है ना, उसके बाद जो इस केस ने डिस्कशन है ना स्पार्क की कि इवन दो औरतें जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को प्रैक्टिस कर रही हैं, वो अपनी है ना. अब आपका ओपिनियन कोई भी हो कि कंदील बलोच की सोशल मीडिया पर्सनालिटी है ना अच्छी थी या नहीं थी, वो ठीक थी या नहीं थी, वो मतलब वो ग्राउंड में deserve to तो die she doesn't- in this हाँ, end of this. exactly. मतलब वो है ना ऑन द पेपर तो अपने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रैक्टिस कर रही थी ना, उसके पास तो ये फ्रीडम थी कि वो है ना जो भी करना चाहे वो कर सकती थी. शी वॉजंट गोइंग अगेंस्ट द लॉ, बट शी वॉज किल्ड, क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है ना. क्योंकि सोसाइटी जो है वो तभी भी क्वेश्चन करेगी अगर है ना औरतें सिर्फ अपने राइट्स के लिए भी बात करें ना, तब भी सोसाइटी जो है औरतों को क्वेश्चन करेगी और उसे क्रिटिसाइज करेगी. So can you tell me what message does the Aurat March try to convey? सो बेसिकली औरत मार्च जो है वो एक एनुअल मूवमेंट है, ठीक है, जो कि सिर्फ ये बात कर रही है कि आपको राइट्स मिलने चाहिए वुमेंस को, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी. और क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा हरासमेंट हो रही है, इन सब चीज़ों की वजह से वो सिर्फ एक राइट्स मांग रहे हैं. ऐसा नहीं है कि औरत मार्च जो है वो एक्स्ट्रा प्रिविलेज मांग रही है, नो. वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो उनको पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो उनको राइट्स मिले एटलीस्ट वो तो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाएं. वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, वो कोई नए लॉस नहीं मांग रहे, बट जो है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाया जाए. एंड यहाँ पे मे बी डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं औरत मार्च के रिगार्डिंग, बट अगर हम उसके पॉजिटिव साइड देखें तो इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई है. एटलीस्ट ये वो टॉपिक है जिससे पहले औरत मार्च से पहले इस टॉपिक में कोई बात भी नहीं करता था कि हाँ यार वुमेन्स भी कुछ ऐसा फेस कर रही हैं, उनकी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं. बट औरत मार्च के बाद अभी पब्लिक डिस्कशन हो गया कि अब हर साल इस पर डिस्कस किया जाता है. एटलीस्ट अवेयरनेस है कि हाँ यार ये प्रॉब्लम्स भी हैं जिनके सॉल्यूशंस हमने फाइंड करने हैं. तो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट. Why does Aurat March receive resistance from some parts of society? औरत मार्च को जो रेजिस्टेंस मिलती है, जो है ना क्रिटिसिज्म मिलती है, वो इसलिए मिलती है क्योंकि देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस टू कल्चर, फैमिली और ट्रेडिशंस. लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं, ठीक है. जो औरत मार्च को सपोर्ट करते हैं उन लोगों की ये सोच है कि औरत मार्च जो है वो वुमेन की एम्प्लॉयमेंट, पार्टिसिपेशन और उनके राइट्स और उनकी वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए आवाज़ उठाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ना. और है ना जो क्रिटिक्स हैं उस है ना
मार्च के, वो ये सोचता है कि बहुत से स्लोगन्स और डिमांड्स जो है ना औरत मार्च में रेज़ की जाती हैं, वो हमारी कल्चर और ट्रेडिशंस के अगेंस्ट हैं, वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं हैं। इसलिए औरत मार्च जो है ना वो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि वो है ना मतलब इवन दो वुमेन आर नॉट आस्किंग फॉर न्यू राइट्स, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ही बोल रही हैं कि इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट तो करो, अगर आपने दे दिए हैं तो वो राइट्स अच्छे से इम्प्लीमेंट होने चाहिए, हमें वो राइट एक्सरसाइज करने की फ्रीडम तो मिलनी चाहिए ना। बट है ना सोसाइटी डजंट सी इट दैट वे, ठीक है, वो है ना ऑब्वियसली रेजिस्टेंस दे रही है कि है ना इट्स नॉट कंपैटिबल विद द कल्चर। तो ये जो पूरी जो है ना रेजिस्टेंस है वही हमारा एक इशू है, वो हमें है ना बोले वो है ना उस गैप को हाईलाइट करता है कि देयर इज़ डेफिनेटली अ गैप बिटवीन द इक्वालिटी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन promises and what the society actually gives us. So, what lesson can Pakistan learn from other countries? इफ़ यू सी इन अदर कंट्रीज़, तो हम देख सकते हैं कि जो वुमेन्स हैं या कोई भी है, तो अगर रात के 12 बजे या रात बहुत लेट नाइट भी अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो दे आर सेफ़, उनको कोई मसला नहीं है, उनको कोई भी हैरेस करने वाला नहीं है या कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो बाहर जाके अकेले भी अगर वो जाएँ तो उनको कोई मसला नहीं है, अगर हम देखें। और ऑल्सो दूसरी कंट्रीज़ में हम देखें तो उनको बहुत ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं, उनकी राइट्स इम्प्लीमेंट भी किए गए काफ़ी, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि सिर्फ उनके राइट्स पेजेस तक महदूद नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखें, कंपेयर करें, तो पाकिस्तान में स्टिल जो अगर एक लड़की जा रही है रोड साइड पे तो वो सेफ़ नहीं है, कोई ना कोई साथ में जाते हुए कोई ना कोई कमेंट ज़रूर पास करके जाएगा। कोई बाइक पे कोई लड़का भी जा रहा है तो उसको कोई ना कोई कमेंट ज़रूर पास करके जाएगा। या उसके अलावा भी हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं, और वो अकेले फिर भी बाहर नहीं जा सकती, अगर वो जा भी नहीं है तो रोशनी में जाए, अगर फिर भी उनको साथ कोई ना कोई मर्द का होना लाजमी है, एज यू मैंशन। तो आई थिंक हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दूसरे मुल्कों से सीखनी चाहिए और वही पॉलिसीज़ अपने यहाँ भी ऐसे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि वो राइट्स अच्छे से हम ले सकें और वुमेन्स जो है वो सेफ फील कर सकें। So, thank you, Habiba and Habiba, for joining us today. We had an amazing discussion about gender inequality, and this will be the end of our discussion. Just another reminder that we do not mean to hurt anyone's opinions or feelings. We are simply sharing what we have learned in our course, and if we have offended you in any way, we are very sorry about that. Thank you for joining us. To the viewers, thank you so much for joining us, and we will see you again next time. Bye. Bye.